on the taxation side and is in practice for the last 20 years. He is regularly arguing the matters before Punjab and Haryana High Court and tax tribunals. He is also regularly appearing before Supreme Court of India. He has been involved in many high-profile litigations in which landmark judgments have been delivered by the courts. He is a lawyer with background of chartered accountancy, he is CA also, where he had been placed on All India merit list in CA exam. He is on All India merit list also in the year 1999. So you can imagine how the high-profile speaker of today. At present, he is managing partner of SGA Law Office, which is the leading law firm at Chandigarh, dealing with taxation matters, having a team of experienced and young lawyers. At present, Mr. Sandeep Goyal has been appointed as Senior Standing Counsel for Income Tax Department in Punjab and Haryana High Court. He was also appointed as Additional Advocate General Punjab in the year 2012. He has been the Vice Chairman of North Zone of AIFTP for 2 consecutive years. He has delivered lectures across the country on diverse topics relating to taxation, etc., etc. So संदीप जी बाकी आप खुद ही बता दीजिएगा और जब आप बोलेंगे तो आपका पता लग ही जाएगा. मैं बाकी आपका प्रोफाइल नहीं पढ़ रहा हूं, हालांकि ये है ब्रीफ में, लेकिन पढ़ने में टाइम ज्यादा लग जाएगा. फ्रेंड्स, मैं सिर्फ संदीप भाई से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने डेलिब्रेशन में एक इस पॉइंट को जरूर कवर कर दीजिए कि अगर मैंने लॉकडाउन से पहले मींस 20 मार्च से पहले रिफंड की एप्लीकेशन लगाई थी LUT के केस में बिना IGST पे किए हुए और उसमें अभी तक कोई डेफिशिएंसी मीमो इशू नहीं हुआ, तो मेरा पूछना यह है कि चूंकि डेफिशिएंसी मीमो 15 दिन में देना होता है और 15 दिन में लॉकडाउन आ गया था, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सारी डेट 31 अगस्त तक एक्सटेंड रहेंगी, तो क्या गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रोविजन लागू है? क्या उसको डेफिशिएंसी मीमो इशू करना चाहिए था या वो 31 अगस्त तक या अभी तक भी वो कर सकता है और मुझे 6 महीने का रिफंड 6 महीने मिलेगा ही नहीं? सो क्या सिचुएशन है? ये एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, इसको भी अगर ड्यूरिंग द डेलिब्रेशन आप ट्रीट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो विद ऑल दिस I welcome a very learned advocate from Punjab, and look friends, along with him Mr. Rajesh Jain from Delhi High Court, refund expert. Both of them are available here. We will take full advantage of their presence, and our chairmen also. So with these words, I welcome Mr. Sandeep Goyal to please start the deliberation. You have 1 hour 15 minutes. So you please explain it in a simple language, beginning from the section itself and then go to the processes also. Thank you so much. Good evening, friends. First of all, I appreciate that Shri J.D. Nankani ji, who had been the past chairman of AFTP, and Shri P.C. Joshi ji, they are available with us today, who have joined the program. My churn spurs to them. E-churn spurs मैं कहूँगा, वो हमारे बड़े हैं, हमें उनसे हमेशा blessing चाहिए, and I'm really really blessed that they have spoken on this occasion and have blessed all of us, not including me. Then Mr. Rajesh Jain, who is the expert in refunds, as Mr. Madan has put him, but I think refund is only one part of his personality. He has, as you said, he has got many of the acts and the notifications quashed. So in a way that he has been continuously troubling the government. So I am really privileged that Mr. Jain has consented to be here, and he has. I have seen him with me in a number of other webinars also, and I have always benefited from his experience and knowledge. Mr. P.R. Kaushal is, of course, a very senior and elder advocate in our Punjab, and the Secretary General of Punjab Tax Bar Association. I have had a very long association with him. I am really grateful to him for having been here as a guest of honor. And Asim Jafar ji, co-director Shri Srivastava ji, who is the Vice President, Shri H.L. Madan ji, coordinator, and of course Puneet ji and Anuj ji, who had been coordinating this program. My thanks to all of them. Then we have, I can see few faces here. Mr. C.R. Bhalla from Faridabad is there. Mr. Arvind Mishra from Allahabad. Mr. Rajesh Malhotra, my very respected senior from Patiala. Mr. Vrinder Sharma ji, my friend, my senior, my brother. And many other faces from Punjab and Haryana. I am really grateful to them that they have joined me.
in this webinar today. Well, friends, coming to the topic of the day, I think refunds, as you all know, had been a very troublesome aspect of any taxation regime, be it earlier the VAT regime, or for that matter, be it in GST. The things have gone from bad to worse. In fact, when the VAT regime was there, the refund was being claimed on the basis of the inputs of the goods which we are using, and mainly the exports was being granted. I'll request Mr. Srivastava to please mute himself. I think there's a little bit of turbulence in between. Mr. Srivastava yeah, thank you. So in the VAT also, we had been claiming refund on the aspect of goods which we are using in the manufacturing, or we are selling it further. And if the rate of tax was lower, then the refund was being given. And if the goods were to be exported, then also the refund was there. All those aspects have been carried over in the GST regime also, but with a lot of complications. Now we have services also mingled with the goods. Then the procedural requirements are there. So, I mean, there are problems, and those problems, I am not seeing those problems getting solved in any near future. And with the circulars, contrary circulars coming in, I think the things are only getting bad from bad to worse. Friends, all those things are to stay, and we as lawyers, as if litigation lawyers, of course, are only gaining out of it. We are not losing anything. So I will firstly touch upon the aspects of refund. My office has prepared this PPT for the benefit of all of us. I hope all of you can see the PPT which is there on the screen. Yes. All right. Right, sir. So I am. So friends, refunds is basically covered under Chapter 11 of the GST Act. Then we have sections 54, 55, 56, 57, 58, and the rules 82 and 89 to 97A. So these are all the rules, basic sections and rules which govern the provisions of refund under the GST Act. So if you have to seek refund, then all these sections are there. What is a refund? We need to understand what is the refund. See, any value addition tax regime, whether it was under the VAT or it is under the GST, the idea is that the tax which is levied on the final taxable supply to the consumer is taken by the government home. So if a person is selling, the ultimate consumer is purchasing goods worth rupees 100, and 18% is the tax, then the government should be getting only 18 rupees on this 100 rupees which has been consumed by the consumer, on which the government should get the tax. Whatever tax has been paid on anterior stages on all this transaction chain, that should get absorbed in this. That's a basic idea. So wherever there is a value addition, value added tax is paid on it. Now there could be cases where the ultimate tax which is borne by the taxable supply is much lesser than the tax which is paid at the anterior stages. For example, if let's say if a person is purchasing yarn, which is taxable at 12%, and final goods are like cloth or the textile, which is taxable at 5%. So if I go to the market, I purchase cloth worth rupees 100, I have to pay tax at the rate of 5%. This is what the government should take back home because it's a consumption-based tax. But my manufacturer, the person who has used yarn in the manufacturing of this cloth, has paid tax at the rate of 12%. Now his input cost is much more than what the tax government should be taking home. Now this is called, in loose terms, this is called inverted duty structure, and the balance amount of tax which remains unabsorbed, the person is entitled to take refund of that. So that is the basic idea. Then secondly, there could be the cases where the tax has been paid by somebody by mistake, or there could be excess tax, there could be some disputes on which the tax has been paid, and in the appeal and revision, etc., the person succeeds. In such scenario also, the refund is paid back. So refund is basically anything which you take back from the government after paying it in the first stage or at the first instance,
but eventually it is found that you are not liable to pay that much of tax. You are entitled to take refund of the excess amount paid by you. I have summarized these 12 cases of refunds which are mentioned in the GST flyers issued by the government, CBIC also. So one could be the case of export of goods or services. This is one major chunk of refunds under the GST regime. Second could be the supplies to SEZ units and developers when the good units are located within the country and the supplies are made to those SE units. Then the third is the deemed export, which is covered under section 147. The government can declare any supply to be the deemed export, and like UU, etc. Such supply is also amenable to refund. Then refund of taxes on purchases made by UN or embassies. This is in terms of the treaties made with the foreign countries, with the UN. India is a signatory to that. Whatever tax is paid by those embassies or UN notified agencies, this is under section 55 of the Act. Whatever tax is paid by them on their inward supplies, the refund, that amount is amenable to refund. Then fifth is the refund arising on account of judgment, decree, order or direction of the appellate authority, appellate tribunal or any court. There could be a case where a person has paid the tax, the entire tax has been recovered by the government by way of bank attachment or anything of that sort, or a person may have ended up paying on its own, but he takes that matter to the court. He agitates the levy of tax itself. So if he succeeds in those, then whatever decree, order or direction is passed by the tribunal, by the appellate authority or by the High Court or Supreme Court, that refund is to be given back, because that will be, in case that is written, that will be violative of Article 265. Then sixth is again one major chunk of refund. I mean, major litigation is going to arise on that, and it has already started. A refund of accumulated input tax credit on account of inverted duty structure other than nil rated or fully exempt supplies. So in case the tax rate on the goods which are sold or the supplies which are made is lower, then the refund is to be granted of the accumulated input tax credit, or which is used, which is also termed as unutilized ITC. Then finalization of provisional assessment. If a person has paid the tax initially and eventually provisional on the basis of provisional assessment, and the final assessment is made later on, then the tax has to be refunded. A refund of pre-deposit, we all know under section 107, the pre-deposit is required to be made if you have to file appeal, 10% in the stage of first appeal, and then 20% further at the time of appeal to the tribunal. Whatever deposit is made, and if we succeed in appeal, that refund has to be made. Excess payment made due to mistake. Lot of instances are there where the tax has been paid by mistake by a person. It could be that in the payment, while making payment in the cash register itself, the payment has been made higher, or in the cases of GST, IGST, SGST and CGST, one account the payment is made more, one the other account the payment is paid less. So in that case also you have to claim refund only. That is the only way which has been provided under the Act. Then the refund to international tourists of GST paid on goods in India and carried abroad at the time of their departure from India. This scheme has not been formulated as yet, as per my knowledge. So this is not being used as of now. A refund on account of issuance of refund vouchers for taxes paid on advances against which the goods or services have not been supplied. We all know that under the GST regime, any advance received is also amenable to levy of tax. So if you have you have received some advance, but you have failed to provide the services, or you have not provided the services later on, then whatever amount has been received in advance, whatever taxes has been paid on that, you can later claim refund of that in case the taxable supply has not taken place at all. Then refund of CGST and SGST paid by treating the supply as interstate supply, which is subsequently held as interstate supply and vice versa. You bona fidely believed a supply to be an interstate supply and paid IGST, but later on the authorities come to conclusion that this is a tax which has to be paid under the CGST and SGST being the local sale or local supply. Then the tax has to be refunded back insofar as IGST is concerned. So that would apply vice versa. Sandeep ji, you can use little bit of Hindi also. There is no problem. Sure. In fact, I was to mention this initially. Number one. मैंने पिछली बार नोटिस करा था कि वो लोग कुछ लोग कह रहे थे कि आप इंग्लिश में बोलिए, पर मैंने ये भी नोटिस करा था कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी में भी बोलिए. So I will put English now. Please. One more message. All the participants who are present,
I wish to tell them that tomorrow on Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. we will be having a webinar. 11 a.m. to 1 p.m. लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद. बहुत ही आइडियल टाइम है आपके लिए. 11 बजे से ले 1 बजे तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन करिएगा. और टॉपिक रहेगा बहुत ही बढ़िया, जो GSTR 2B which is to come, and it is coming very fast now, and returns and their rectification. From compliance point of view, we have got a very good speaker who is expert in compliances, Mr. Suresh Agarwal, and along with him, Mr. Virender Chauhan, author on GST, will also be available, who is also an authority on compliances, etc. So I request all of you to please join. Sorry for the interruption, Sandeep Bhai. That's all right. In fact, that's a very good information. It is for the benefit of all the participants here. So I'm going to straightway going to the provisions of section 54. Section 54 में जो हमें provide करा गया है, we need to read that very carefully. अगर हम 54 को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसकी different interpretations निकल के आती हैं. We being practicing in the High Court, we normally encounter different situations जहां पर के लोगों की situations जो हैं वो अगर section 54 के तहत पढ़ी जाएं तो उसके different मायने निकल के आते हैं. So it is always better that we read section 54 in the context of facts of each case. That's very important. When I had started reading GST, the first thing I had to learn was to unlearn. That's very important. Whatever you had learned earlier, that you need to unlearn, then learn and then relearn. That is the key behind learning GST. So section 54 को अगर हम पढ़ते हैं, this says any person claiming a refund of tax and interest if any paid on such tax or any other amount paid by him. तो मैं पहले थोड़ा सा इसको bifurcate करूंगा. So if we read section 54, any person यहाँ पर यूज करा गया है registered person और non registered person दोनों के लिए. यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहा गया कि registered person ही क्लेम कर सकता है, बिकॉज मैं इसलिए इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आगे की हम सबसेक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं रजिस्टर्ड डीलर की बात आ रही है, रजिस्टर्ड पर्सन की बात आ रही है. तो एनी पर्सन वेदर ही इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड claiming a refund of one, there are three types of refunds we are talking about under section 54(1) of the tax, number 2 interest paid on such tax, and any other payment. Then if he is willing to claim refund of any of these three, he has to make an application before the expiry of 2 years from the relevant date. इसमें लिमिटेशन इन्होंने डाल दिया है कि 2 साल से पहले आपको एप्लीकेशन देनी है, और वो एप्लीकेशन आपको 2 साल जो है वो रेलेवेंट डेट से शुरू हो जाएंगे. जो रेलेवेंट डेट है वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 54 में प्रिस्क्राइब करी गई हुई है. डिफरेंट सिनेरियोस के लिए डिफरेंट डेट्स हैं, उसके ऊपर भी झगड़ा चल रहा है, तो हम उसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट दोस एस्पेक्ट्स आल्सो. एंड यू हैव टू मेक दैट एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. वन ऑफ द forms on which we make the application is RFD 01, which probably takes care of most of the cases relating to refund. Provided that a registered person claiming a refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of subsection 6 of section 49 may claim such refund in the return furnished under section 39 in such manner as may be prescribed. तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड क्लेम करना है तो 49(6) के प्रोविजंस के तहत वो उसको रिफंड को रिटर्न में भी क्लेम कर सकता है, तो उसके लिए उसको अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है. नाउ आई गो टू सबसेक्शन 54(2). A special agency of UNO, any multilateral financial institution or organization notified under the UN Privileges and Immunity Act, consulate or embassy of foreign countries or any other person or class of persons. उसके बाद उन्होंने लिख दिया notified under section 55. तो ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नोटिफाई होंगे 55 में, they are also entitled to refund of tax paid by it on inward supply of goods or inward supply of services or inward supplies of both goods and services. उन सबको रिफंड मिल सकता है. For this purpose they have to move an application in RFD 10 and that has to be done within expiry of 6 months from the last date of the quarter in which the supply was made. So I have given example also in case some supplies, inward supplies there on 15th of September 2020 by one of any of the agencies. Then for the quarter ending on 30th of September 2020, the organization is required to make an application for refund before 31st of March 2011.
अब इसमें अगर आप देखोगे सेक्शन 54(2) में इन्होंने लिख रखा है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनके लिए नोटिफिकेशन इशू करना जरूरी है, और वही बात उन्होंने 55 में लिख रखी है। तो मुझे आई फाइंड दिस इज द डुप्लीकेसी ऑफ प्रोविजंस। 54(2) में ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जो आपने इसमें सिंपली लिख सकते थे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी जो पर्संस हैं जिनको वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे 55 में, उसका रिफंड हम दे देंगे। that was just to mention that we are lacking simplicity in the provisions of law. 54(3). So this is the section which is applied day in, day out, and it has lot of litigation, it has lot of problems, it has lot of avenues. पहली बात तो अगर हम इसमें देखते हैं 54(3) और 51 को कंपेयर करते हैं, first aspect that will arise is whether 54(1) and 54(3) can survive without each other. क्योंकि अगर आप 54(1) को कंपेयर करते हैं 54(3) के साथ, तो 54(1) यूज करता है any person can claim refund of any tax, interest on such tax or any other payment amount paid by him. Now one question arises in your mind is whether refund of tax, interest on tax or any amount paid by him would include the unutilized input tax credit also. There could be some kind of brainstorming on this aspect. Okay, unutilized input tax credit is neither the tax paid, it is neither the refund of any tax, और ये interest भी नहीं है, और ये any amount paid by him भी नहीं है. Though somebody can make a case that this is the tax paid by him to the supplier of goods, of course that has gone to the government, but there could be a case, there could be some argument that 54(1) and 54(3) can survive independently, and both are the separate provisions for grant of refund. I'll read 54(3). Subject to the provisions of subsection 10, a registered person may claim a refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period. अब ये इसमें इन्होंने लिख रखा है subject to the provisions of subsection 10, और रजिस्टर वो subsection 10 है with regard to the fact कि वो withhold कर सकते हैं अगर आपने कोई पेमेंट देनी है. I'm not going into that aspect as of now. So it says a registered person. So this is in contradistinction to 54(1) which talks about any person. Here only a registered person can claim refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period. तो यहां पर इसके बाद कॉलन यूज करा गया है अगर आप देखोगे सेक्शन के अंदर. तो दिस इज द प्रिंसिपल प्रोविजन, दिस इज द सब्सटेंटिव प्रोविजन. मैं इस पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में जो अभी केस आया था वीकेसी फुटस्टेप्स के में, उसमें इस एस्पेक्ट को काफी अच्छे से आर्ग्यू भी करा गया है और इस एस्पेक्ट को डील भी करा गया है. उसमें वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड. तो इसमें अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब हम बात करते हैं, दैट इंक्लूड्स द क्रेडिट क्वा 1 the tax paid on goods, the inputs, the tax paid on services which is input services. Number 3 is the tax paid on the capital goods. So if we see the definition of 262 of the input tax, it includes everything: capital goods, services, as well as goods, whatever tax you have paid. And input tax credit, if you see 263, then it says the credit of input tax available to you. So input tax credit is the credit of capital goods, the tax paid on capital goods, the services, the goods. So that remains unutilized at the end of any tax period. They say you can claim refund of that. So that's the first aspect. Now comes the exceptions or the provisos. They are narrowing it down. They say, provided that no refund of unutilized input tax credit is allowed in cases other than. Now this word cases is troubling my mind. What is the meaning of cases other than? एक एग्जांपल आप लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने यान का एग्जांपल लिया, कि वो 18% यान परचेज करता है और वो टेक्सटाइल बनाता है उसमें से, और 5% उसके ऊपर टैक्स लगता है. बट ड्यूरिंग दिस कोर्स ही हैज यूज्ड दी सर्विसेज आल्सो व्हिच आर टैक्सेबल एट 18%. और देयर कुड बी केसेस जहां पर 18% नहीं है, वो 5% की सर्विसेज हैं. दो देयर आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर नॉट मेनी सर्विसेज व्हिच आर 5%. But let's assume for a moment that कि वो जॉब वर्क की सर्विस को 5% कर देते हैं.
तो वो जॉब वर्क की सर्विस को 5% यूज करते हैं, 18% की गुड्स को यूज करते हैं, सो डू, और उसके पास अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, तो क्या वो व्यक्ति जो है वो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर सकता है? क्या वो वही केस है? बिकॉज यहां पर वर्ड यूज करा है कि केसेस, प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इज अलाउड इन केसेस अदर देन, तो मेरा केस तो बन गया ये कि मेरे पास अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कौन से केसेस? अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और मैं उस टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर देता हूं, मेरे पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा है तो मेरे को मिल जाएगा। हालांकि एक्सपोर्ट में कोई लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं है, बट वहां ये भी हो सकता है कि उसने एक्सपोर्ट भी करा और उसने लोकल सेल भी करी। तो इफ आई सी दिस इन आइसोलेशन कि मेरे पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी भी है और मेरा वो एक्सपोर्ट करने वाला केस भी है, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको सिर्फ उसी का रिफंड मिलेगा, उन्होंने कह दिया अलाउड इन केसेस अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर मैंने कोई एक्सपोर्ट करी है उन गुड्स को मिक्स करके, तो क्या मेरा रिफंड कम हो जाएगा? आई थिंक some argument can be made on that. I mean this is some gray area. Then it says, और दूसरा केस कौन सा? where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies other than nil rated or fully exempt supplies. तो इसमें अब उन्होंने कह दिया कि कौन से केसेस जहां पर आपका आईटीसी हैज accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies. तो मेरे टेक्सटाइल का रेट तो 5% है और मेरा 18% का इस पे इनपुट्स हैं और मैं सर्विसेज भी यूज कर रहा हूं, तो मेरा केस जो आईटीसी क्रेडिट है दैट हैज accumulated on account of my output supplies being taxable at the lower rate than the inputs, तो क्या मेरा वो केस नहीं बन जाता? अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग आपका वाकई में वो केस बन जाता है, और ये कहीं नहीं लिखा इस सेक्शन के अंदर कि आपका जो रिफंड है वो रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा किसी भी मायने में। इनफैक्ट अगर आप वीकेसी फुटस्टेप की जजमेंट को, इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट जजमेंट, देयर इज अ कैटेगोरिकल आर्गुमेंट इन दिस एस्पेक्ट कि जो फर्स्ट प्रोविजन है, जो फर्स्ट सबसे पहले अगर आप स्लाइड में सबसे टॉप का वो देखोगे कि जो मेरा सब्सटेंटिव प्रोविजन है वो यही है कि मेरे को अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलना है, पर वो उन केसेस में नहीं मिलना जहां पर ये सिचुएशंस पूरी नहीं होती हैं। बट मेरी सिचुएशन तो पूरी हो रही है, मेरे केसेस तो पूरे हो रहे हैं। तो नीचे इन्होंने कह दिया एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैज बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। वो गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है कि किसकी आउटपुट सप्लाईज के ऊपर हम आपको रिफंड नहीं देंगे। इसके ऊपर भी एक झगड़ा चल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल कर चुका है इन द केस ऑफ शबनम पेट्रोफिल्स के नाम से। आपको याद होगा शायद एक इन्होंने तकरीबन जुलाई 2018 में दे केम आउट विद अ नोटिफिकेशन व्हिच वाज इशूड अंडर सेक्शन 54(3), जहां पर उन्होंने कुछ टेक्सटाइल की आइटम्स को उसमें एलिजिबल कर दिया था। इनिशियली दोज आर नोटिफाइड टू बी इनएलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, बट लेटर ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्री दोज आइटम्स वर आल्सो ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ रिफंड, जहां पर के एग्जम्प्ट जो आईटीसी अनयूटिलाइज्ड वो आपको मिलेगा। तो जब वो नोटिफिकेशन इशू करा, साथ में उन्होंने एक नीचे डाल दिया नोटिफिकेशन के अंदर कंडीशन कि आपको रिफंड आगे से तब मिलेगा अगर आप पुराना आईटीसी रिवर्स कर देते हो जो कि आपके से एक्यूमुलेट हुआ है, क्योंकि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी तो था पर उसका रिफंड नहीं मिल रहा था। तो इन सच अ सिचुएशन there was a lot of ITC which stood accumulated in the books, but the notification said कि आप उसको रिवर्स करोगे या उसको लैप्स करोगे। There was no requirement of the same. No person was claiming a refund of that unutilized ITC which was lying with them because that related to the period related to earlier period. But at the same time section 54 में 3 में जब आप नोटिफिकेशन इशू करते हो उसके अंदर आपके पास ऐसी तो कोई पावर नहीं है ना कि आप उसका आईटीसी भी रिवर्स कर दो, क्योंकि वो तो सेक्शन 16 में गवर्न होता है। 54(3) की नोटिफिकेशन, व्हाट टू टॉक ऑफ द एक्ट और द रूल्स, they were doing it by way of a notification while notifying the goods on which the ITC would be refundable. So that provision, that notification part had been struck down by the Honorable Gujarat High Court in the case of Shabnam Petrophil, and later on that matter has traveled up to Supreme Court. Initially the stay was granted up to certain date, but later on that stay has not been extended. Litigation is pending in various high court, including our own high court in Punjab and Haryana.
Then there is an exception that cases where refund of unutilized ITC is not allowed, where the export is made, the goods are subject to export duty, वहां पर नहीं मिलेगा. Or if the supplier of goods has availed the drawback in the respect of central tax or claims the refund of IGST paid on such supplies. So those are the cases where the refund will not be allowed. Now, जो मैं आपको section 54(3) की बात कर रहा था, उसमें I had compared this provision with section 20 of HVAT Act 2003. तो अगर हम इसमें I'll use my cursor here. अगर आप इसमें section 20 पढ़ोगे, 20 subsection 2 of Haryana VAT Act, it says a refund of input tax shall be admissible to a VAT dealer in accordance with the formula provided under subsection 1 of section 8 of this act. In respect of, this is very important, the language used by that act, in respect of input tax relating to the goods which have been sold in the course of export of goods out of the territory of India or have been used in the manufacture, and the manufactured goods have been sold in the course of export of goods out of territory of India in full. So they were very clear while making a provision कि आपको कितने इनपुट टैक्स का रिफंड मिलेगा. वो कहते हैं पूरे इनपुट टैक्स का रिफंड मिलेगा जो कि गुड्स उस एक्सपोर्ट में यूज हुई हैं, जो कि आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया भेजी गई हैं, या उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ है जो कि गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजी गई हैं, जो इनपुट टैक्स उसमें यूज हुआ है. अगर आप सेक्शन 54 में कंपेयर करोगे तो वहां पर ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है हमें कि आपको उतना ही रिफंड मिलेगा जितना इनपुट टैक्स आपकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ है या उसकी सप्लाईज में यूज हुआ है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर यूज हुआ है, और जो कि वो एक्सपोर्ट हुई हैं. वहां पर उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली वर्ड यूज कर रखा है, provided that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in cases other than zero rated supplies made. So it's very very vague. और सेक्शन जो उन्होंने रूल 89 इसमें प्रोवाइड कर रखा है, 89(4) 89(5) जो प्रोवाइड कर रखा है, that's icing on the cake, because section 54(3) does not say that you have to prescribe any formula for the purpose of calculation of refund. और अगर इसको सेक्शन 20 ऑफ हरियाणा वैट एक्ट आप कंपेयर करोगे, उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सबसेक्शन बी, सब क्लॉज बी में था, उसमें उन्होंने कैसे यूज करा है, दे आर सेइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ यू कैन क्लेम रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स relating to the goods which have been sold in the state or in the course of interstate trade or commerce, or have been used in the manufacture, and the manufactured goods have been sold in the state on the course of interstate and commerce, only to the extent of such input tax exceeds the tax including the central tax calculated on the sale of goods on account of difference in the rate of tax between the input tax and the tax calculated on sales. So पहली बात तो उन्होंने इसमें क्लियर करी कि किसका रिफंड मिलेगा, जो इनपुट टैक्स है, और जो इनपुट टैक्स आपने उन गुड्स में यूज करा है जो गुड्स आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बेची हैं, और कितना मिलेगा, जितना आपका डिफरेंस है रेट ऑफ टैक्स का. आई थिंक दिस प्रोविजन इज वेरी क्लियर. इन्होंने एक्ट के अंदर ही इस प्रोविजन को डाल दिया. और एंड इफ यू कंपेयर दिस विद 54(3) इट डज नॉट लीड अस टू एनीवेयर, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. We were saying that right from the beginning that the GST Act is lacking the clarity with regard to the provisions of the Act. The legislation itself is faulty. The delegated notification, the delegated rules which have been framed are faulty. Then the notifications are not in accordance with the provisions of Act and the rules. And then the further chaos was created by way of tweets, flyers, clarifications, advance authority rulings, and so many and so forth. एक अगर आप 54(3) को देखोगे, एक पीछे क्लैरिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था, आई थिंक दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, जिसमें 23 मार्च को शायद कुछ एक सर्कुलर इशू करा था इन्होंने शायद इसके आसपास, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर आप गुड्स को परचेज करते हैं, से वो 2 महीने या 3 महीने आपके पास पड़ी रही, आपने जब परचेज करी उन गुड्स के ऊपर रेट ऑफ टैक्स 18% था, उसके बाद वो गुड्स चली गई, उनका रेट ऑफ टैक्स नोटिफाई हो गया 12%. द मीन टाइम जब 2 महीने का टाइम निकला, तो किसी व्यक्ति ने क्लेम करा कि जी वो तो मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 54(3) में कवर होता है, तो मेरे को उसका रिफंड दिया जाए 6% का, क्योंकि जब मैं बेच रहा हूँ 12% है, जो मैंने पे करा 18% है. क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं भैया, आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑफिसर कहता हमारी इंटेंशन नहीं थी. अब मेरे साथ आप सेक्शन 54(3) पढ़िए, इसमें कहीं से वो इंटेंशन जाहिर हो रही है. इट सेज subject to the provisions of subsection 10, a registered
person may claim refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period. 2, where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs. So inputs क्या है? Inputs are the goods which you are using in the course and furtherance of business. That is the simple definition. On account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies. तो उस केस में कहां प्रॉब्लम है कि आपने 18% परचेज करी और 12% की आपकी आउटपुट सप्लाईज हैं, तो आप उसको रिफंड क्यों नहीं दोगे? कहीं पर आपकी एक्सेप्शन में नहीं है, कहीं आपकी नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं आपका रूल नहीं है इसके बारे में. सो हाउ कैन यू डिनाई द रिफंड टू दैट फेलो? पर वो क्लैरिफिकेशन इशू करके हमारे लॉ को कॉम्प्लिकेट करी जा रही हैं, उनको राइटफुल जो क्लेम है उनको वो डिनाई करी जा रही हैं. तो ये सेक्शन 54(3) के जो एस्पेक्ट है, इसको आप वी कैन एनालाइज दिस. ऑफ कोर्स द मैटर्स विल गो टू द कोर्ट आल्सो. दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है, एक तो हम बात कर रहे थे सर्विसेज बीकेसी फुटस्टेप्स की जजमेंट के ऊपर ही मैं थोड़ा सा और डेलिब्रेट करूंगा. बीकेसी फुटस्टेप्स में facts were that the person was manufacturing footwear. जो फुटवियर था उसका टैक्सेबल था 5% के ऊपर, जबकि जो इनपुट्स उसमें यूज हो रहे थे, रेजिन यूज हो रहा था, केमिकल्स यूज हो रहे थे, रबर यूज हो रही थी, देयर वर मेनी एस्पेक्ट्स, उसमें वो 18% का था. तो उनके पास देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो उनको रिफंड मिलता, मिल भी जाता. बट अब उसमें केस में क्या हुआ, बहुत सारी वो जो सर्विसेज थी वो भी उनकी इनपुट सर्विसेज थी जो कि उसमें वो यूज कर रहे थे, वो भी सब 18% पे टैक्सेबल थी. तो वो पार्टी ने क्लेम करा कि जो आप सेक्शन 54 कह रहे हो, 54 के मुताबिक तो मेरे को कंप्लीट अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलना चाहिए, पर आपका रूल 89(5) कहता है कि आपको नहीं मिलेगा. और इनिशियली 89(5) में प्रोवाइड करा था कि इनपुट टैक्स जो सप्लाई सर्विसेज हैं और गुड्स दोनों के ऊपर मिलेगा. बट उन्होंने बाद में अमेंडमेंट करके अप्रैल 2018 में उसको चेंज कर दिया और बाद में जून 2018 में उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे दिया. मीनिंग देयर बाय दे सेड नहीं, हम तो आपको सिर्फ गुड्स के ऊपर देंगे. एंड प्रॉब्ली दे आर थ्राइविंग अपॉन द फैक्ट कि वहां पर वर्ड जो प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, वहां यूज हुआ वर्ड रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन. सो दे आर सेइंग हम उस केस की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ सर्विसेज आपने 18% में ली है. So this argument of the department has been negatived by the Honorable Gujarat High Court, and the writ petition has been allowed. That has been extensively argued. The argument made was that Section 54 in principle does not disallow any refund on account of the use of services which are taxable at the higher rate. So therefore that refund has to be granted. इसमें एक aspect discrimination का बहुत बड़ा आता है. Section 14 Article 14 of the Constitution, अगर आप इसको देख के चले, there could be one person who is like in the case of footwear itself, let's take that very example. I'm a manufacturer. I am manufacturing footwear which is taxable at 5%. पर मेरे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं सारा कुछ इन हाउस बना सकूं. तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ जो उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं उसको अपने जॉब वर्कर को दे देता हूं. वो जॉब वर्कर मेरे को उन गुड्स को सेमी मैन्युफैक्चर्ड, सेमी फिनिश गुड्स में और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के तौर पे वो मेरे को सप्लाई करता है और उस पे 18% जॉब वर्क लेता है, क्योंकि मटेरियल मेरा था, जो भी उसने यूज करा वो 18% उसमें जॉब वर्क लग गया. बट जॉब वर्क ऑफ कोर्स हैज लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, तो 18% बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है. अब कानून कहता है कि आप उसका रिफंड नहीं ले सकते हो जो आपने टैक्स जॉब वर्कर को पे करा 18%. नाउ आई टेक सेकंड सिचुएशन जहां पर मेरे पास इन हाउस सारा कुछ है, जो जॉब वर्कर करता है वो मैं अपने घर में भी कर सकता हूं. उस केस में क्या होगा कि मैं जितना भी प्रोडक्ट परचेज करके जॉब वर्कर को देता था या जॉब वर्कर यूज करता था उसमें, तो वो सारे का सारा मैं अपने इन हाउस बना रहा हूं, इंटीग्रेटेड मेरा प्रोसेस है, और उसमें मैं सारे का सारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे 5% पे बेच देता हूं. उस केस में मेरे को पूरा रिफंड मिलेगा. कैन दैट सिचुएशन बी कंसिडर्ड टू बी ट्रीटिंग बोथ द पर्संस इक्वली under the law? According to me, Article 14 does not allow this discrimination, because वो जो डिफरेंशिया कर रहे हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो है, वो that is with respect to the persons who are selling footwear. Both of them are selling footwear. Both of them are taxable at 5%, and the rate of tax is 5%. Therefore, there cannot be any discrimination in between them insofar as their inputs are concerned. That differential is not allowed, because refund जो है वो आपके taxable event जो output supply है उसके basis पे आपको मिल रहा है,
ना कि आपके जो आ रहे हैं मटेरियल जो आ रहा है उसके बेसिस पे मिल रहा है जब मटेरियल या सर्विसेज आ रही हैं। Therefore, that will be according to me violative of Article 14. तीसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि कैपिटल गुड्स का अगर फंड मिलेगा आपको, अगर आप सेक्शन 54 अगेन देखते हैं, 54(3) देखते हैं, तो वहां पर ऐसी कोई रोक नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाईज में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो तो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं किसी गुड्स की, तो क्या मेरे को कैपिटल गुड्स का रिफंड मिलेगा? बिकॉज इनपुट टैक्स की डेफिनेशन जो 262 की है उसके अंदर कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है वो भी इंक्लूडेड है और वो अनयूटिलाइज्ड भी है मेरा अप टू सर्टेन एस्पेक्ट और अप टू द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। तो वो आपको उसका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट में फॉल कर गया वो। परंतु रूल 89(4) में अगर हम जाते हैं, जहां पर एक्सपोर्ट को हम एक्सपोर्ट का रिफंड लेने के लिए, वहां पर उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है फॉर्मूला में कि आपको सिर्फ जो इनपुट सर्विसेज हैं, जो इनपुट गुड्स हैं, जो इनपुट्स हैं, जो उन्हीं का आईटीसी जो है वो उसका रिफंड मिलेगा। क्यों भाई? Your section doesn't say that. Your section doesn't say that you will prescribe a formula for this purpose. You can't go back to, you can't go use powers under section 164 to say that कि हम rules उसके अंदर बना सकते हैं. That rule has also to be in conformity with the provisions of the act. Section 54 does not allow you, but exporters को इस बात का बहुत नुकसान हो रहा है। Capital goods के ऊपर भी रिफंड मिलना चाहिए। तो वो एस्पेक्ट सारे ऑफ कोर्स कोर्ट्स में जा चुके हैं, लिटिगेशन में चल रहे हैं, रूल्स आर अंडर चैलेंज, and we hope that we'll get a favorable decision in all those things. Now going to section 54(4), that's with regard to the documentary evidence which you are required to submit along with your application. आपको एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि आपको रिफंड क्यों ड्यू है। वो 89(2) में काफी डिटेल में स्टेटमेंट्स वगैरह उसमें लिखी हुई हैं जो आपको देनी है। Then you have to furnish such document as other evidence, including the documents referred in section 33, as the applicant may furnish to establish that the amount of tax paid has not been passed on to the other persons. तो अब इसमें जो है undue enrichment का aspect इसमें कैप्चर करा गया है और उसमें वैसे 54(5) में क्लियरली प्रोवाइड करा गया कि आप ऐसा जो रिफंड है वो आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालोगे, तो आपको एविडेंस देना है रिफंड क्लेम करते हुए कि आपने ये इंसिडेंस जो है वो पास ऑन नहीं करा। दैट इज इन लीग विद द अर्लियर प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एवरीवेयर दिस प्रोविजन वाज देयर, एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ celebrated judgment of Maflal Industries Limited, 9 judges bench. Justice BP Jeevan Reddy had written a very extensive judgment in that, whereby it was said that the state can enrich itself because it represents large number of people than an individual. So that is based upon that unjust enrichment. So that provision had to be there. उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख से नीचे अगर रहता है तो आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। Then I'm going to section 54(5). 54(5) में उन्होंने कहा है कि if on receipt of such application the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as a refund is refundable, he may make an order accordingly in the amount so determined shall be credited to the fund referred to in section 57. So this is the rule. This is the general rule कि अगर उसको लगता है कि वो रिफंड उसको पेबल है तो वो उसके लिए ऑर्डर पास करेगा और वो सारे का सारा जो अमाउंट है वो सेक्शन 57 में जो फंड है कंज्यूमर वेलफेयर फंड उसको क्रेडिट हो जाएगा। देयर आर एक्सेप्शंस टू दैट। दे हैव प्रोवाइडेड दैट इन केसेस वेयर इट विल नॉट बी सो क्रेडिटेड टू द फंड। उन्होंने कह रखा है गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फंड टू बी सेक्शन 57 में है, जो फंड है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है। दिस वी नीड नॉट गो इनटू दिस। 54(6) कह रहा है notwithstanding anything contained in subsection 5, जहां subsection 5 में प्रोवाइड करा गया था कि आपका जो रिफंड है that will be credited to the consumer welfare fund, उसमें क्या है notwithstanding anything contained in that subsection, meaning thereby here the actual cash comes to people who have made the application for refund. The proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero rated supply of goods or services or both made by registered person, अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाई है जो आप रजिस्टर्ड पर्सन ने करी है, other than such category of registered person as may be notified by the government on the recommendations of the council, so that notification has to be issued separately. दूसरा है refund on a provisional basis, form GST RFD 04 में 90% of the total amount so claimed excluding the amount of input tax credit provisionally accepted. तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 90% ऑफ द रिफंड जो है वो आपको प्रोविजनल बेसिस पे मिल सकता है
जिसके लिए कि सेफगार्ड्स और कंडीशन प्रिस्क्राइब करी गई हैं रूल 91 में। तो उसके बाद वो RFD 06 में ऑर्डर पास करेगा। दिस इज द केस विद रिगार्ड टू प्रोविजनल रिफंड। और उसमें इन्होंने प्रोवाइड करा हुआ है the proper officer shall issue the order under subsection 5 within 60 days from the date of receipt of application complete in all respects। ये गाइडलाइन, ये जो पीरियड है, मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी केस में फॉलो होता है। अब ये 60 डेज की सेंटिटी क्या है? लोग जाते हैं कोर्ट में जाते हैं क्योंकि 60 डेज तक तो फाइल को कोई हाथ भी नहीं लगाता। अगर आपको कुछ भी ऑर्डर पास करना है तो आपको एप्लीकेशन के 60 डेज में पास करना है, वो कोई भी उस एस्पेक्ट को देखता ही नहीं है। तो आप कोर्टों में जाते हो, कोर्टें उसको कहती हैं, डायरेक्शन देती हैं कि आप 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में डिसाइड करो, फिर वो कहते हैं कि आप कोर्ट गए, इस वजह से आपका रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती हैं। सो दिस गोज ऑन एंड ऑन। और कोई भी जो क्लाइंट है, जो भी कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो जल्दी जल्दी किसी भी जीएसटी डिपार्टमेंट के व्यक्ति से जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं उसको उसके साथ क्रिएट करना चाहता, क्योंकि अगर आपको तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से प्यार नहीं कर सकते हैं आप, तो इसलिए वो 60 डेज वाले एस्पेक्ट को ज्यादा प्रेस नहीं होता है। बट दिस इज द मैंडेट अंडर द लॉ व्हिच शुड बी फॉलोड if it is not mandatory, but it is at least directory and recommendatory and should be followed by and large insofar as provisional refund is concerned. Then it says, notwithstanding anything contained in subsection 5, the refundable amount shall, instead of being credited to the fund, section 57, be paid to the applicant if such amount is relatable to. So यहाँ पर वो केसेस सारे आ गए हैं जहां पर उस व्यक्ति को, जो एप्लीकेंट है, उसको रिफंड मिलेगा, जो RFD 01 में एप्लीकेशंस नॉर्मली होती हैं। Refund of tax paid on export of goods or services or both, or on inputs or input services used in making such exports, exporter जो है उसको refund मिलेगा। Refund of unutilized input tax credit under subsection 3, जो आपका unutilized input tax credit का है, उसका है refund आपको मिल सकता है। Refund of tax paid on a supply which is not provided either wholly or partially and for which invoice has not been issued or where a refund voucher has been issued, जहां पर आपको एडवांस में पैसे आ गए हैं और आपने टैक्स पे कर दिया पर सप्लाई आपकी हुई नहीं है, उसका आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 77, जहां पर आपने गलत हेड में टैक्स पे कर दिया है, आपको सेक्शन 77 में उसका रिफंड आप यू कैन क्लेम ऑफ दैट। टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय द एप्लीकेंट इफ ही हैड नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स एंड इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन, अगर आपने कोई भी अमाउंट कोई भी क्लेम करते हैं जिसका इंसिडेंस आपने नहीं पास ऑन करा हुआ किसी व्यक्ति को, जो आपने सपोज आपने ज्यादा टैक्स लगा लिया, कम लगा लिया, अगर आपने वापस कर दिया उस व्यक्ति को जिससे लिया, तो उस केस में आपको उसका रिफंड मिल सकता है। The tax or interest borne by such other class of applicants as the government may on the recommendation of the council by notification specify, जैसे कि इसमें आ जाते हैं ये UNO वगैरह वाले जो इंसिडेंट्स हैं, उन सबको रिफंड आपको मिल सकता है और भी लोगों को नोटिफाई कर सकते हैं। Then 8A इन्होंने इंसर्ट करा है, the government may disburse the refund of state tax in such manner as may be prescribed, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से CGST एक्ट में प्रोवाइड कर दिया गया कि स्टेट टैक्स का रिफंड भी वो दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द मैनर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 54(9) says, notwithstanding anything to the contrary contain any judgment, order or direction of the appellate tribunal, any or court or in any other provisions of this act or the rules made thereunder or in any other law for the time being imposed, no refund shall be made except in accordance with the provisions of subsection 8. तो उन्होंने कह दिया है कि 8 के मुताबिक जो रिफंड है वही मिलेगा और कोई रिफंड नहीं मिलेगा, बाकी सब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, तो उसके बगैर आपको रिफंड कोई मिल ही नहीं सकता। देन द 10 इज, जहां पर वो अगर किसी व्यक्ति को रिफंड ड्यू है 54(3) में अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का और उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया है इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, तो उसको जो स्टे नहीं और उसके खिलाफ कोई टैक्स निकल आता है which has not been stayed by any court, the proper officer may withhold payment of refund। ये सब प्रोविजंस पहले भी थे कि अगर सरकार ने आपसे कोई पैसा लेना है तो आपको अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, वो उसमें से डिडक्ट कर सकता है, उसको विदहोल्ड कर सकता है, और अगर उसको कोर्ट में किसी ने स्टे नहीं करा हुआ उस अमाउंट को, तो इसमें स्पेसिफाइड डेट जो है वो दैट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील। उसमें अगर वो स्टे नहीं होता बाय द स्पेसिफाइड डेट तब वो उसमें रिकवर कर सकता है। और 54(11) जो है उसमें कहा कि अगर आपको सपोज किसी जगह पर किसी ऑर्डर ने रिफंड कर दिया है और वो दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्दर अपील, जैसे आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में आप जीत गए हो और उसकी अपील सरकार ने ट्रिब्यूनल में कर दी है जो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ, तो उस केस में जो कमिश्नर है वो कमिश्नर को लगता है कि वो जो रिफंड है वो आप
एडवर्सली इफेक्ट करेगा रेवेन्यू को। जैसे उसको लगता है कि वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, वो रात को भाग जाएगा, उसको रिफंड दे दिया, या उसके एंटीसीडेंट्स ऐसे नहीं है कि वापस सरकार को मिल जाए, या उसके डेट्स इतने पड़े हुए हैं कि उसको रिफंड दिया तो वो सब वहां पर खत्म हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ मैल्फिजेंस और फ्रॉड कमिटेड, तो उस केस में उसको कमिश्नर कैन विदहोल्ड दैट रिफंड टू दैट पर्सन। और उसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है, और उसको उसमें टाइम भी बताना है कि कब तक वो रिफंड जो है वो डिटरमिन वो कब तक उसको रोकेगा। 57(12) जो प्रोविजन है, 57 जो 12 है वो कह रहा है वेयर इज अ रिफंड इज विदहेल्ड अंडर सबसेक्शन 11 द टैक्सेबल पर्सन शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 56 बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 6% एज मे बी नोटिफाइड। तो 6% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा जो कि इंटरेस्ट आपको विदहोल्ड नहीं हुआ। If as a result of appeal of further proceeding he becomes entitled to refund. So that those are the procedure. Basically, those provisions have to be provided. 54(13) कहता है not with anything to the contrary contained in this section the amount of advance tax deposited by casual taxable person. अगर कोई व्यक्ति अपनी एग्जीबिशन लगाना चाहता है, वो कैजुअल पर्सन के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाता है, तो he has to pay some advance tax. तो जब उसकी फाइनल असेसमेंट हो जाएगी 27(2) में, उसके बाद ही उसको रिफंड मिलेगा, जबकि उसने रिटर्न सारी फाइल कर दी है। तो जितना बैलेंस बचेगा जो उसने टैक्स ऑलरेडी एक्सेस पे कर रखा है और उसका फाइनल हिसाब किताब करेंगे, देन दैट रिफंड हैज टू बी पेड। अगर 1000 रुपए तक आपका रिफंड है तो सरकार को वो डोनेशन के तौर पे आप रसीद ले सकते हैं उनसे, उनको आपको वापस नहीं मिलेगा। एक एस्पेक्ट जो एक्सप्लेनेशन का है, एक्सप्लेनेशन 1 है, जो वो कहता है रिफंड इंक्लूड्स रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच जीरो रेटेड सप्लाईज, रिफंड इंक्लूड्स द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट एंड रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3। तो एक्सप्लेनेशन 1 में उन्होंने रिफंड को इंक्लूड कर लिया है कि ये सारे जो रिफंड्स हैं वो भी रिफंड की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं, जहां पर इस सेक्शन में रिफंड वर्ड का जिक्र होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 54(3) और 54(1) को हम कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन में रीड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बीच में लेके चलते हैं एक्सप्लेनेशन को, तो वो डिस्टिंक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है वो भी टर्म रिफंड में इंक्लूडेड है, और अगर आप 54(1) में पढ़ोगे दैट विल इंक्लूड द रिफंड ऑफ ऑल अमाउंट्स, ऑल टैक्स paid. So to my mind जो 54(3) है that has to be read in supplementing 54(1) itself. Those cannot stand on a different footing, cannot stand isolated to each other. 54(2) यहाँ पर यूज हुआ है टर्म रेलेवेंट डेट। ये रेलेवेंट डेट की रेलेवेंस है। आई विल गो टू दिस नेक्स्ट स्लाइड। कुछ झगड़े यहां पर मेरे नोटिस में आए हैं कि रेलेवेंट डेट में 2 साल लोगों ने नहीं करा है, तो वो 2 साल कब से कैलकुलेट होंगे। एक्सपोर्ट के केस में अगर सी से है तो जिस दिन कन्वेंस जो है दैट लीव्स इंडिया, लैंड से है द डेट द गुड्स पास फ्रंटियर, जैसे वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाती हैं या नेपाल बॉर्डर से जाती हैं या भूटान जाती हैं, बाय रोड जाती हैं, तो जिस दिन वो फ्रंटियर को पास करेंगी उस दिन उसको माना जाएगा। पोस्ट से अगर जाती हैं तो जिस दिन डेट ऑफ डिस्पैच होता है, कोरियर से अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया है तो उस दिन जिस दिन डिस्पैच हुआ उस दिन माना जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या है, सप्लाई बिफोर पेमेंट। अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आई हुई है तो जिस दिन आपके पास वो पेमेंट आ गई है वो, और अगर आपकी पेमेंट बिफोर सप्लाई है तो आपके डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, तो दोनों चीजों में इन्होंने लेट कर दिया। अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आई है तो जिस दिन इनवॉइस इशू करोगे उस दिन एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर आपने सप्लाई कर दी है, पेमेंट बाद में आएगी, तो जिस दिन पेमेंट आएगी उस दिन माना जाएगा। उस दिन से 2 साल लागू होंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, जिसमें डेट ऑन विच द टैक्स इज एडजस्टेड। अगर आपने कोई प्रोविजनल असेसमेंट पहले डिपार्टमेंट को कह के करवाई है और जिस दिन आपकी फाइनली असेसमेंट हो जाती है प्रोविजनल असेसमेंट, उस दिन आपको रिफंड आपके 2 साल तब से शुरू हो जाएंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, date on which the return related to deemed export is filed or refund is claimed by the recipient. अब डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि 2 लोग उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एक तो जो है सप्लायर वो कर सकता है, एक वो जो रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स है वो भी क्लेम कर सकता है।
तो उसमें उन्होंने कर रखा है कि जिस दिन रिटर्न, अगर एक्सपोर्टर जो है, जो सप्लायर है, वो अगर रिफंड क्लेम करता है तो 2 साल तब से शुरू होंगे जब डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटेड टू दिस इज फाइल्ड। और अगर रेसिपिएंट है, जिस दिन रिफंड क्लेम करता है रेसिपिएंट, उस डेट से 2 साल शुरू होंगे। रिफंड बाय, आई थिंक इट शुड हैव बीन दी गुड्स रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। रिफंड बाय कोर्ट ऑर्डर जो है वो जिस दिन डेट ऑफ जजमेंट है उससे 2 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का है 2 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अब इसमें आई विल हैव अ पॉज। जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है वो आप क्लेम कर सकते हैं विद इन 2 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39। पहले ये जो पीरियड था ये था फ्रॉम द 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अब सेक्शन 39 की जो रिटर्न है उसका अपने आप में ही बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। You would all recall under section 61, under section 39, the return is prescribed under rule 61, जो कि उन्होंने GSTR 3 प्रोवाइड करी हुई थी। तो आप एंड कंपनी का जो गुजरात हाई कोर्ट में पहले ये झगड़ा गया था, जो लिटिगेशन गई थी, in that litigation honorable Gujarat High Court had held that GSTR 3B is not a return which is prescribed under section 39. तो रूल 61 में जो रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड है वो GSTR 3 ही है, जो कि आपने पोस्टपोन कर रखी है और आपने वो अभी तक अबेंडन नहीं करी। आपने ये नहीं कहा कि GSTR 3 फाइल ही नहीं करनी है आपको। तो उसमें आप एंड कंपनी में उन्होंने कह दिया कि GSTR 3B की जो रिटर्न फाइल है दैट इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन क्लेम टू बी अ रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 39। तो सरकार ने उसके बाद उसमें अमेंडमेंट करी, जीएसटी काउंसिल में ये मुद्दा उठा के 3B को तो रिटर्न ही नहीं मान रहे हैं। अब 3B को उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट अंडर रूल 61 कि जी वो जो 3B है वो भी हम 61 की रिटर्न मानेंगे 39 में जो सेक्शन है, तो देयरफॉर दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 39। बट अगर आप 39 की रिक्वायरमेंट देखोगे तो 39 में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी जो रिटर्न है उसको हम, किस रिटर्न को हम लोग सेक्शन 39 की रिटर्न मानेंगे। उसमें एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है डिटेल्स विद रिगार्ड टू इनवर्ट सप्लाईज। वो जो डिटेल्स ऑन इनवर्ट सप्लाईज है जो सेक्शन 39 बोलता है कि उसकी रिटर्न में इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल होनी चाहिए, वो रूल 61 में अगर आप 3B देखते हो जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी इवन नाउ 3B is not a return which can be prescribed under section 39 and therefore आप एंड कंपनी की जो रेशियो है जजमेंट की, चाहे वो स्टे हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी भी प्रेवलेंट है इवन आफ्टर द अमेंडमेंट। As of now GSTR 3 continues to be a return which is prescribed under section 39 और उसकी डेट अभी भी फाइलिंग की पेंडिंग है, चाहे एनुअल रिटर्न मेरी फाइल हो चुकी है। ये सब सरकार का किया धरा है, ये सारा का सारा जो मेस क्रिएट करा गया दैट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली। पहले तो आप 2-3 साल चलाते रहे कि 3B भरते रहो 3B भरते रहो, 3 हम भरवाएंगे। आपके सर्कुलर भी कहते रहे कि जी GSTR 3 की डेट हम आपको बताएंगे, 2 की रिटर्न आपको बताएंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन देन यू से नो नो नाउ 3B इज द रिटर्न। अब एक व्यक्ति जो है उसका रिफंड बनता है सितंबर 2017 का, वो इस जो आपने अमेंडमेंट करी है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ये आपकी रिटर्न अमेंडमेंट आई है अक्टूबर 1 फरवरी 2019 में, जो कि प्रिस्क्राइब करी गई। अब उस व्यक्ति ने जो है सितंबर 2017 की 2 साल की आप कह रहे हो, उसने रिटर्न तो फाइल कर दी थी उसी टाइम, 3B की तो रिटर्न फाइल करी थी। अब आप अक्टूबर 2019 में आके उसको कह रहे हो कि आपके तो 2 साल पूरे हो गए अगर आप रिफंड अप्लाई करते हो, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कर सकता था उसको अप्लाई 2 साल। कहते नहीं, हमने अमेंडमेंट कर दी आपकी, आपको अब रिफंड नहीं मिलेगा। और ऐसे केसेस हुए हैं। लेजिटिमेट ड्यूज टू द पीपल, लेजिटिमेट ड्यू टू द एक्सपोर्टर्स हैज बीन डिनाइड। दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट। अब हम लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं कोर्ट्स में, और उसमें वन ऑफ द मेजर आर्गुमेंट्स इज दैट अंडर सेक्शन 39 द रिटर्न हैज टू इंक्लूड इनवर्ट सप्लाईज and 3B is not a proper return under section 39. Therefore the period which is mentioned, 2 years period mentioned under the relevant date here, that continues to be in prevalence even as of today. And therefore the moment I will file a return which is prescribed under 39, only thereafter the period of 2 years will start. जो ये आप बैक डेट से amendments कर देते हो, जो पीरियड को curtail कर देते हो, that is not in league with the provisions of the GST Act. So वो litigation चल रही है, hopefully we will succeed in that as well. Then
स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो बात है, जो डेट्स जो 2 years हैं वो शुरू होंगे, डेट्स आफ्टर गुड सर्विसेज आर रिसीव्ड इन द SEZ, पर्सन अदर देन सप्लायर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सप्लायर के बगैर जो अगर कोई लेता है तो जिस दिन गुड्स रिसीव करेगा वो, इन एनी अदर केसेस द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब इसमें भी कुछ आए थे एस्पेक्ट्स जो चल रही हैं कोर्ट्स में, जो अपील में भी चल रहे हैं, कि उस व्यक्ति ने गलत हेड में टैक्स पे कर दिया, उसको पता ही तब चला जब एनुअल रिटर्न फाइल हो गई थी, जबकि पेमेंट पहले हो गई थी। तो ये जो 2 साल का पीरियड था इन्होंने जो प्रिस्क्राइब करा था कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, वो उस तब था जब सारा कुछ एक्ट के अंदर ठीक ठाक चल रहा है। आप GSTR 1 फाइल कर रहे हो, आप GSTR 2 फाइल कर रहे हो, आप GSTR 3 फाइल कर रहे हो, क्योंकि उसमें सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड था। आपको जो भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जो भी मिसमैचिंग थी, आपकी उसी टाइम सामने आ रही थी। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम GSTR 1 फाइल कर रहे हैं और GSTR 3 भी फाइल कर रहे हैं। तो जो वो गलतियां हैं, जो मिसमैचिंग है, वो कई साल तक, काफी पीरियड तक आपको पता ही नहीं चलती। अब लोगों के जो एनुअल रिटर्न्स फाइल हुई हैं फरवरी 2019 में जाके, उस टाइम पर लोगों ने अकाउंट सेटल करे, तब जाके उनको पता चला कि यहाँ पर हमारा आपस में मिसमैच आ रहा है। तो somebody dug out the entire accounts and it was found कि जी जो रिफंड है वो जो हमारी ये मिसमैच है इस वजह से कि हमने टैक्स गलत जगह पे भर दिया, ये तो लोकल सेल थी, हमने IGST भर दिया। अब वो कह रहा है कि जो लोकल वाला टैक्स था वो तो उनसे भरवा लिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या के भरवा लिया, जब उसने खुद भर दिया। पर जब वो IGST का रिफंड लेने जाता है कि मैंने गलत जगह, वो कहते हैं आपके 2 साल पूरे हो गए, आपका नमस्ते जी, जाओ। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम टैक्स तो कभी भी ले सकते हैं पर हम आपको रिफंड नहीं देंगे उसका। तो ये लोगों के साथ, आई वुड से दिस इज इन दिस कंसीडरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड, ऑफ कोर्स कोविड, एक तरफ तो गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमने कोई 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, और एक तरफ लोगों को 20,000 रुपए भी नहीं मिल रहे या 2 लाख रुपया भी नहीं मिल रहा है, which is very unfortunate, which is legitimately due to them. I'm not blaming government directly for that, but the bureaucracy, of course, the babudam which we face in the country is creating a lot of problems, and these are the very unfortunate aspects of GST. देन रिफंड के कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 55 है जो UNO वगैरह के लिए जो अथॉरिटीज हैं वो सब उस रिफंड्स को क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करी हुई हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज आई थिंक ये बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। 56 है इंटरेस्ट एंड डिलेड रिफंड्स, जब आपका रिफंड कोई भी डिले हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें 54 जो ऑर्डर हो जाता है तो उसके 60 डेज के अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं होती है तो आपको 6% इंटरेस्ट उसका मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट का एस्पेक्ट है। आई एम नॉट अगेन गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट बिकॉज दैट पहले आपको प्रिंसिपल मिलेगा तब उसके बाद इंटरेस्ट की बात होगी जब ऑर्डर होएगा। 58 is utilization of, 57 was the consumer welfare fund, 58 is the utilization of funds, that is again the government's job, nothing to do with us. कुछ केसेस हैं जहाँ पर refund will not be available to you if the supplier avails of drawback of central tax or claims refund of IGST paid on such supplies. This is the third provision to section 54(3), हमने पहले भी इसको टच कर लिया है। If the amount is less than 1,000 वो आपको नहीं मिलेगा। Authority for sanction जो है इसके लिए डेप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर है, सर्कुलर इसके लिए इशू है 5 जुलाई को। अब एक बात जो इन्होंने भी जैन साहब ने भी टच करी थी कि जो डेफिशिएंसी मीमो इशू होता है RFD 03 का और जो RFD 08 में जो फाइनल ऑर्डर पास करते हैं ऑर्डर रिजेक्टिंग रिफंड का, तो उसके बारे में आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। तो जो ये डेफिशिएंसी मीमो है, अगर आप इसको रूल को देखोगे, रूल 90 के अंदर जो डील होता है, इट सेज के अगर आपकी डेफिशिएंसीज हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सब रूल 89 में जो है 2, 3 एंड 4, तो 2 में है विद रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है आपको देना है। 3 के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपने जो उसका क्रेडिट है जो ITC है उसको आपको रिवर्स करना है फॉर द टाइम बिंग। और 90 सबसेक्शन 4 में है, उसमें आपका 89(4), आई एम सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट 89(2), 3 एंड 4। तो 89(2) में जो है वो है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, 89 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच यू हैव टू गिव, योर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट्स आपको पेंड करनी है। 89(3) जो है दैट टॉक्स अबाउट द रिवर्सल ऑफ ITC फॉर द टाइम बिंग टिल द रिफंड इज डिसाइडेड। जितना आप रिफंड क्लेम करते हैं तो आपको उतना ITC उतनी देर के लिए रिवर्स करना है जब तक डिसीजन नहीं होता। 89(4) इज द सब्सटेंटिव प्रोविजन with regard to calculation of refund। अब आपने रिफंड अप्लाई कर दिया RFD 01 में, तो कानून कहता है कि 15 दिन के अंदर आप उसका डेफिशिएंसी मीमो इशू करोगे।
दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है विद रिगार्ड टू जियान इंटरनेशनल कि अगर आप 15 दिन में इशू नहीं करते हो तो इट विल बी प्रिज्यूम कि आपका कोई डेफिशिएंसी नहीं है। अब डेफिशिएंसी अगर वो निकाल देते हैं तो आई हैव अ राइट टू अप्लाई इट अगेन। RFD 03 अगर मेरे को इशू होता है तो उसमें लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर ही, ऑफिसर मेरे को टाइम ग्रांट करेगा कि आप इसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हो बाय कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज। ऑफ कोर्स दैट पीरियड ऑफ 2 years विल रिमेन। So I can file repeated applications in RFD 01, and if those are rejected or those are deficiency memos are issued to me in RFD 03, then it will come back to me and it will be presumed as if I have not filed any application at all. Then I'll move an application again because some evidence, suppose मैंने export का shipping bills की requirement नहीं पूरी करी, state में नहीं append करी है, तो मैं उसको साथ में दोबारा से लगा के अप्लाई कर सकता हूँ, पर वो डेफिशिएंसी मेमो 15 दिन के अंदर मेरे को मिलना चाहिए। ये जियान इंटरनेशनल जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें इस बात को एक्नॉलेज करा गया है। अब जो अगर इसको हम रीड करते हैं विद रिगार्ड टू RFD 08 जो रूल 92 में है, ये कहता है कि आपकी डेफिशिएंसी मेमो सपोज इशू नहीं हुआ, आपने रिफंड की अप्लाई करा RFD 01 में, उसने में कोई डेफिशिएंसी मेमो नहीं है, परंतु ऑफिसर समझता है कि ये रिफंड आपको नहीं मिलना है। सपोज यू हैव क्लेम्ड 100 रुपीज एज अ रिफंड, जैसे मैंने सर्विसेज का क्लेम कर लिया, लाइक इन द केस ऑफ वीकेसी फुटस्टेप्स जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, तो कानून कहता है कि आप उसके ऊपर एक ऑर्डर पास करोगे कि हमने आपका रिफंड पूरी तरह से मंजूर नहीं करा, ये रिफंड हम आपका रिजेक्ट कर रहे हैं टू दिस एक्सटेंट, और वो जो ऑर्डर है वो RFD 08 में पास करेंगे रिजेक्शन ऑफ रिफंड का। परंतु वो जब ऑर्डर पास हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते उस रिफंड को, दैट इज लाइक अ सब्सटेंटिव ऑर्डर। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे 143(1)A का होता है, आपको एक इनकम टैक्स में इंटीमेशन आती है कि ये आपको आपका असेसमेंट ऑर्डर इन शेप आपको मिल रहा है, हालांकि वी कैन नॉट स्ट्रिक्टली कंपेयर 143(1)A विद दिस एस्पेक्ट, और 143(3) की जो सब्सटेंटिव असेसमेंट है, तो जो RFD 08 है दैट इज लाइक अ सब्सटेंटिव ऑर्डर व्हिच इज पास्ड ईदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग योर रिफंड। जो डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है उसमें आपके राइट्स खत्म नहीं होती हैं, RFD 08 के बाद आपके उस पार्ट के लिए रिफंड के लिए आपके जो है राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद रूल ये प्रोवाइड करा गया है कि जैसे ही आपका रिफंड रिजेक्ट होता है आप उस ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हो बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, पर अगर आप उसको रिजेक्ट करते हुए आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाते हो तो आपको जो ITC आपने रिवर्स कर रखा था रूल 89(3) में, वो आपको तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक अपील आपकी डिसाइड नहीं होती है। ओके, यू कैन नॉट गेन फ्रॉम बोथ द साइड्स की एक तरफ तो आप रिफंड भी क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप उसका ITC भी यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी अवेलेबल। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इसके पीछे कोई रीजन, वैलिड रीजन नहीं बनता है कि जब मैं क्लेम कर रहा हूं और मेरे को नहीं रिफंड मिलेगा तो मैं उसको क्यों नहीं यूज कर सकता, बिकॉज दैट शुड रिलेट बैक टू माय प्रीवियस पीरियड, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट आई एग्री विद देम कि भैया जब मेरा आप रिफंड दोगे आप उस टाइम पर रिवर्स करो ना मेरा ITC, जो आपने रिफंड दिया है उस टाइम पर ITC रिवर्स करो। तो गवर्नमेंट को लगता है कि वो रिफंड क्लेम कर दिया, आप उस डेट को देख सकते हैं कि मेरे पास उतना अनयूटिलाइज ITC है या नहीं है, तभी आप मेरे को रिफंड दोगे, आप नहीं तो आप नहीं भी दोगे। तो ये सारे जो चीजें हैं गवर्नमेंट ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, बाबूज ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रखी हैं। तो RFD 0, आई होप RFD 08 और 03 में थोड़ा सा हमारा जो डिस्टिंक्शन है वो क्लियर हो गया है। ये जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं RFD 01 है जो वो एप्लीकेशन आप मूव करते हैं, RFD 02 इज द एक्नॉलेजमेंट, RFD 03 इज द डेफिशिएंसी मेमो, प्रोविजनल ऑर्डर होता है रिफंड का RFD 04 में, RFD 05 इज द पेमेंट ऑर्डर जो कि सब लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, RFD 06 इज द रिफंड ऑर्डर ईदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग और पार्शियली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग योर ऑर्डर, जो कि RFD 08 जो इन्होंने बोला था उसके साथ होता है। RFD 07 is prescribed for adjustment of refund with the outstanding demand. RFD 08 कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा तो RFD 08 में वो नोटिस इशू करता है, वो which ultimately culminates into RFD 06. तो उसका जो रिप्लाई है वो हमने RFD 09 में देना है। तो ये सारे एस्पेक्ट इसके अंदर प्रोसीजरली इन्होंने RF फॉर्म जो है उसको प्रिस्क्राइब कर रखा है। रिफंड का फॉर्मूला 89, आई थिंक वी नीड टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस रूल 89।
रूल 89 में 4 के अंदर इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए फॉर्मूला प्रिस्क्राइब करा हुआ है, जिसमें लिखा है रिफंड अमाउंट शैल बी द लीस्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टैक्सेबल टर्नओवर। तो एडजस्टेड टर्नओवर जो है वो डिफाइन करी गई है इसमें, where net ITC means credit availed on input and input services during the relevant period other than input tax credit availed for which refund is claimed under sub rule 4A or 4B or both. Balance in electronic credit ledger at the time of filing of refund. Balance in electronic credit ledger at the end of period for which the refund is filed. और उसका जो adjusted turnover है वो आगे defined है, उसका मतलब होता है, I think that has been skipped out of this, rule 89 में है। उसके मुताबिक ये है कि जो आपकी टर्नओवर है, जो टैक्सेबल टर्नओवर है, जो जीरो रेटेड टर्नओवर है, वो ही इसके अंदर इंक्लूड होएगी। जो बाकी की टर्नओवर है एग्जम्प्टेड वगैरह वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। और दूसरी सिमिलरली इन्होंने इसमें प्रोवाइड कर रखा है, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है वो 89(5) में है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि टर्नओवर ऑफ इंपोर्टेड रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस द टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपकी गुड्स आप परचेज करते हैं लोकली जो कि हाई रेट ऑफ टैक्स है, सर्विसेज का इसमें इंक्लूड इन्होंने नहीं कर रखा, नेट आईटीसी के अंदर जो इंक्लूडेड है डेफिनेशन, यही इसी रूल को हम लोगों ने चैलेंज कर रखा है, जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी जगह पर ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सारे थे रूल से रिलेटेड हैं। सीए सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस, आई एम नॉट टचिंग अपॉन दैट प्रोसीजर। रिफंड फॉर्म्स इसमें है और इस एस्पेक्ट को a very big thank you to all of you. I hope I was well within time. एक दो चीजें, एक मेरे को मदान साहब ने एक क्वेश्चन पहले करा था कि अगर एलयूटी की एप्लीकेशन एलयूटी बेस के ऊपर कोई कर रहा है आरएफडी 01 में और 20 मार्च 2020 को उसने एप्लीकेशन दी है, नहीं एप्लीकेशन नहीं दी है, उसके अभी वो टाइम बचा हुआ है। दिस वाज द क्वेश्चन, है राइट सर? नो सर, एप्लीकेशन इज फाइल्ड, यस, पर 15 दिन का टाइम है, जो 15 दिन का टाइम है और बीच में कोरोना आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें तो हमारा ये कहना है कि क्या डेफिशिएंसी मीमो 15 दिन में डिपार्टमेंट को देना है या डिपार्टमेंट 31 अगस्त 2020 तक नहीं देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया? सर मैं इसके लिए माय व्यू इज के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर आप उसको पढ़ोगे, दैट इज एन ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 142 और उसके मुताबिक जितना भी लिमिटेशन का पीरियड है किसी भी स्टैच्यू के अंदर, दैट विल स्टैंड एक्सटेंडेड। तो अगर आपने 20 मार्च को अप्लाई करा है और 15 दिन के अंदर उनको इशू करना था, तो वो 15 दिन के अंदर अगर नहीं इशू करा, दैट इज नॉट फेटल फॉर देम। पहले एस्पेक्ट तो यही आता है कि क्या 15 दिन मैंडेटरी है या नहीं है। जियान इंटरनेशनल में कहा है कि वो मैंडेटरी है, बिल्कुल कहा गया है। अगर हम जियान इंटरनेशनल के प्रोविजंस को भी लेके चलें, उसकी रेशो को भी लेके चलें, तो उसके मुताबिक भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अंडर आर्टिकल 142, दैट विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ द रेवेन्यू, कि वो 15 दिन में अगर इशू नहीं हुआ तो वो अभी भी इशू उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। परंतु अगर 15 दिन पहले खत्म हो चुके हैं आपके कोविड शुरू होने से, अगर वो 15 दिन का पीरियड निकल चुका है, देन दैट पीरियड विल नॉट गेट एक्सटेंडेड। वो कल ही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसके मुताबिक वो 15 दिन का पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें 15 दिन खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि 31 अगस्त 2020 की डेट है, तो 6 महीने या 5 महीने तो उस बंदे को रिफंड मिलेगा ही नहीं सर। वो उसमें वो इस सिचुएशन में यस यू आर राइट, पर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पर मुझे जो पता चला है कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज आर नॉट सोलली रिलाइंग अपॉन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज दे हैव देयर ओन डाउट्स अबाउट इट, कि कल को उसकी इम्प्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। तो उसमें वो ये लेके चल रहे हैं कि हम डेफिशिएंसी मीमोस इशू करेंगे, या कुछ भी जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, असेसमेंट्स की हैं या कुछ भी हैं, वो हम कंप्लीट करके चलेंगे। नहीं, पर उसमें प्रॉब्लम संदीप जी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब डिपार्टमेंट 2 महीने खुला ही नहीं, ऑफिसर्स दफ्तर आए ही नहीं, और जो पर्टिकुलरली स्टेट के दफ्तरों के घरों में तो कोई फैसिलिटी भी नहीं है। सेंटर वालों के यहाँ तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी थी, लेकिन स्टेट में कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने किसी को नोटिस दिया ही नहीं। तो अब हमारा ये कहना है कि आपकी डेफिशिएंसी का टाइम खत्म हो गया। कैन वी से लाइक दिस कि आपकी डेफिशिएंसी का काम खत्म हो, टाइम खत्म हो गया, नाउ यू हैव टू इशू द रिफंड? सर मेरा इसमें व्यू ये है कि वो 15 दिन का पीरियड अभी भी चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अगर आप पढ़ोगे उसके बाद भी जो इशू हुए हैं,
उसके मुताबिक वो 15 दिन का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ उनका। जैन साहब कुछ कहना चाहेंगे शायद इसके बारे में? राजेश जी। तो मैं सिर्फ एक दो तीन चीजें कहूंगा जी। हम सबको ध्यान होगा कि एक सेक्शन 168 कैपिटली इंट्रोड्यूस हुआ था इन द लास्ट ऑफ मार्च 2020, जहां फोर्स मेजोरे क्लॉज लगा करके एक्सटेंशन की प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए। रिफंड की प्रोविजन जो सेक्शन 6054 है और जो रूल्स हैंगे, आई थिंक दैट वाज देयर वाज अ नोटिफिकेशन व्हिच वाज इशूड ऑन 2nd of April 35/2020 और फिर उस नोटिफिकेशन को बाद में दोबारा एक्सटेंड किया गया 55/2020। तो उससे जो पीरियड एक्सटेंड होता है, I think that gives the extension to the government to issue the deficiency memo. But अगर वो deficiency memo का टाइम अब निकल चुका है, see because the Supreme Court का जो जजमेंट था 23rd March 2020 का, जो suo motu ऑर्डर को लेकर के था, that was only in relation to litigation and relating to appeals, applications, suit etc. जहां आपको फाइल करना है। ये जो डेफिशिएंसी मीमो इशू करना है डिपार्टमेंट को, दिस इज नाइदर एप्लीकेशन, दिस इज नाइदर सूट नॉर अपील नॉर रिवीजन। इट्स अ स्टैट्यूटरी पावर व्हिच डिपार्टमेंट हैज टू एक्सरसाइज। Therefore, these two notifications were issued from time to time. If that period has gone and they have yet not issued any deficiency memo, then according to me, Jian International should apply and they cannot issue any deficiency memo now because that period has gone. That would be my saying. Of course, this matter can be taken up and this matter may come up before the courts also. But my understanding is that this power is not basically in the realm of appeal, application or revision. Therefore, that may not apply. But given the time period of extended period which has been given by the notification that has expired, under which they could do, now that has also gone. Until unless some other notification comes to extend this period further. मेरे ख्याल से अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, लेट मी जस्ट ओपन दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसमें ना ऐसा एस्पेक्ट नहीं था कि सिर्फ लिटिगेशन से रिलेटेड ही उसमें एक्सटेंशन करी गई थी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन दैट। अनुज जी, संदीप की आवाज थोड़ी कम हो गई है, कैन इट बी इंक्रीज्ड? सर ठीक है, अभी ठीक है आवाज? यस यस यस। ओके ओके, एक सेकंड सर, मैं आपको जरा इस इशू पर बहुत सारे मेंबर्स की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये इशू अपनी तरफ से रेज किया है, क्योंकि बहुत लोगों ने मार्च उसके कोरोना से पहले 5-7 दिन पहले ही एप्लीकेशनें लगाई थी और उनका 15 दिन का टाइम खत्म नहीं हुआ था और लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन कहता है कि 31 अगस्त तक आप कुछ कर नहीं सकते, तो 31 अगस्त तक गवर्नमेंट को भी तो पावर मिलनी चाहिए कि वो भी डेफिशिएंसी मीमो इशू करने की उनको भी पावर हो कि उसके बाद वो कर सकते हैं। सो आई जस्ट माय लिमिटेड नॉलेज इज लिमिटेड because you people are more expert in high courts etc, so you will be able to explain. I think जैन साहब का व्यू ठीक लग रहा है इसमें, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था that is to obviate the difficulties being faced by the litigants with regard to the filing of suits and appeals and petitions or whatever. तो उसका उन्होंने limitation period extend करा था, that may not be available to the department. Okay. Right. ओके। दैट एस्पेक्ट तो सर आप फिर 15 दिन के बाद आप ज्ञान इंटरनेशनल को क्लेम करके रिफंड क्लेम कर ही सकते हैं। एक सर, आप सारे समझदार लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन पूछना था कि जो इंटरेस्ट है वो सरकार हमको तो 10% देती है और खुद 18% चार्ज करती है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते क्या? सर ये मुझे लग रहा है कि जो कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, पर हमारी कोर्ट्स हमारे साथ नहीं है। मुझे जो लगता है सर उसमें एक रीजन है इसके पीछे। आपकी आवाज फिर डाउन हो गई सर। सर अब आ रही है सर आवाज? यस सर, उसमें ना एक कारण है, जो इंटरेस्ट रेट जो हायर रखा हुआ है इन्होंने अपनी रिकवरी के लिए, और जो देते हैं वो कम देते हैं। सरकार के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जो लोग हैं वो चोर हैं, तो वो सोच रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया और वो उस अमाउंट को यूटिलाइज करता है,
बाजार का जो रेंट टैक्स जो उसका इंटरेस्ट का रेट है वो कम से कम 10, 12, 11% के करीब उसको मिलता है, जो नॉर्मल होता था किसी टाइम पर, अब थोड़ा कम हो गया है, 10-11% के है। तो अगर हम सरकार भी उससे 6% लेगी तो वो टैक्स देगा ही नहीं, कि जब टैक्स देना होगा हम 6% के हिसाब से कन्वीनियंस के मुताबिक दे देंगे। तो इसलिए उन्होंने उसको रखा हुआ है रेट को 18%, क्योंकि अगर हायर रेट होगा तभी सब लोग टैक्स पे करते हैं, अगर बराबर भी रख दिया जाएगा तब भी टैक्स की प्रायोरिटी नहीं होगी। और जो दूसरा एस्पेक्ट है कि वो कम क्यों देते हैं बाजार के रेट से, 6% क्यों देते हैं जब वापस देते हैं, उसका कारण ये है सर कि अगर ज्यादा रेट देंगे तो लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर पास करवाएंगे जहां पर वो रिफंड लोग जितने पैसे हैं वो एफडी बना लेंगे उस अमाउंट को ज्यादा पे करके और वापस लेंगे वो ज्यादा रेट से। तो दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। गवर्नमेंट उसमें चाहती है कि मिल मिला के जो करते हैं लोग तो 6% पे कम मिलेगा। तो पीपल आर बेसिकली आस्क्ड टू comply with the provisions of law कि आप very well said, very well said. Sir, I acknowledge the presence of Mr. G. Ravi from Vellore, Mr. B.B. Devan, our senior member, Advocate Rakesh Malhotra ji, Rakesh Kumar ji, senior member, Surinder Kumar ji, senior member, all members who have joined late or I could not see them. So I welcome all of them. And now भाटिया साहब कुछ कहना चाहते हैं, भाटिया साहब को प्लीज। भाटिया साहब हैं? हाँ जी, हाँ जी, भाटिया साहब आइए सर, वेलकम सर, भाटिया साहब, वेलकम। I requested sir to unmute. Already requested Bhatia sir. भाटिया साहब अनम्यूट कर लीजिए। राज के बत्रा जी भी हैं क्या? तो चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, अब मेरे को अनम्यूट हुआ हूँ मैं। जी सर, बताइए सर। हाँ, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने कहा कि इंटरेस्ट हमारे को कम रेट के ऊपर देते हैं और लेते ज्यादा रेट के ऊपर हैं। Constitutionality of such a provision has been upheld by the courts. ये पहले भी चैलेंज हो चुका है ये प्रोविजन। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है ये कर सकती है कि वो ज्यादा रेट ले इंटरेस्ट का और आपको कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट दे जब वो रिफंड करते हैं तो। नहीं सर, वो तो ठीक है, उनकी पावर तो है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पावर को किसी तरह से इसको बराबर करवाइए ना। 18 और 6 का तो बहुत गैप है ना सर। बराबर नहीं, वहाँ इसी तरह का ही प्रोविजन था जो चैलेंज हुआ था कोर्ट के अंदर, जिसको अफोर्ड किया। और जहाँ वो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह करके जो है वो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा जी, जो प्रोसीडिंग की बात थी, जिसके अंदर राजेश जी ने कहा कि वो सिर्फ वो रिवीजन वगैरह को और अपील वगैरह को लगेगा, लिटिगेशन को लगेगा। तो अगर मेरे को रिफंड नहीं मिल रहा या डिले हो रहा है, एक तो पहली चीज तो वो भी लिटिगेशन है। और मेरे ख्याल से वर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक बार ऑर्डर देखना पड़ेगा हमें, जो सुओ मोटो ऑर्डर था उसमें वर्ड प्रोसीडिंग भी है, एनी प्रोसीडिंग भी शायद उन्होंने यूज किया है। मेरे पास इस टाइम सामने है नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस टाइम गाड़ी, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, तो उस हिसाब से जो है वो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब गवर्नमेंट के लिए भी एक्सटेंड हो जाएगा। मदान साहब, may I add? मदान साहब, may I add in this? एक नोविस इन जीएसटी। कल लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हो गया है फॉर रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन। उसमें जीएसटी के भी जो डेट्स हैं they also stand extended. आपको इसमें है this is page number 37 of the bill. उसमें relaxation of the time limit in certain indirect tax laws. उसमें they have covered GST and other indirect taxes, and they say that the government may by notification specify for the completion of compliance of such action as completion of any proceeding or issuance of any order, notice, intimation, notification or sanction or approval by whichever name called by any authority, commission, tribunal or whatever name call, etc., or filing any appeal, etc. They, in this case also, they say that it will stand extended. So probably this could also be referred to resolve this particular issue. It will be extended so far as government is concerned. No, any action to be taken by government. Any action.
सर एक बात आप समझ लीजिए, हम जितनी मर्जी इस बारे में बहस कर लें, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी इस बारे में, कोर्ट भी कर देगी ना इसको कि ये डेफिशिएंसी मीमो इनको 15 दिन में इशू करना था, इवेंचुअली गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके बैक डेट से अमेंडमेंट कर देनी है इसकी। नहीं सर, संदीप जी हो गई है ये तो अमेरिकन से, ये वही कह रहा हूं ना, प्रपोज्ड अमेंडमेंट कर ही देनी है अल्टीमेटली। उन्होंने ऑलरेडी कर दी है, इसमें प्रपोज कर दिया है कि सब्जेक्ट टू बीइंग पास बाय द लोकसभा। पर जैन साहब का जो व्यू है दैट इज वेरी राइट, आई वुड एग्री। भाटिया सर उसमें ना प्रोसीडिंग जो आप कह रहे हो ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर मेरे सामने लिखा हुआ है। भाटिया सर उसमें लिख रखा है कि इसमें लिख रखा है टू obviate such difficulties and to ensure that lawyers litigants do not have to come physically to file such proceedings in respect of courts tribunal across, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स में जो लिमिटेशन थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। ये स्पेसिफिकली मेंशन है ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स, so I think जो अथॉरिटीज है that will not be covered under tribunals or courts. Okay, Anuj ji, and next question. सर एक क्वेश्चन आया है अवनी त्रिवेदी जी का। नहीं, we have received. I'm reading out the question. पढ़िए। The first question is received from Ms. Vanika Gupta. Her question is, sir, within how many days we can reply to show cause notice? सर वो प्रिस्क्राइब्ड है आपका रूल 90 के अंदर ही है। एक सेकंड, वो आप उसकी बात कर रहे हैं नहीं, which show cause notice? RFD 08 की बात ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो। पहले पूछे which show cause notice, इसमें तो डेफिशिएंसी मेमो आता है ना। नहीं सर, RFD 08 में दूसरा शो कॉज नोटिस आता है ना आपके पास, ऑर्डर रिजेक्शन। Vanika is Miss Vanika is yes sir. Sir, actually, what happened, sir? The department has issued show cause notice and about RFD 08. I'm talking about RFD 08, and my client has export of services. So they issued RFD 08 show cause notice, and they said you have to reply within 5 days. So is it possible, because in Act it is said that at least 15 days they should have given to us? Yes, it is mentioned 15 days. You have a right to you have a right to reply within 15 days. This is mentioned under Rule 92(3). You can reply. So even if he has mentioned to reply within 5 days, you can make a request to him that as per law it is 15 days. I will reply after 7 days. Yes. Okay, sir. Next question. Next question is from Mr. Vijay. His question is, sir, when can there be a situation of drawback of central tax? Since in his understanding, a drawback is only calculated against custom duty, including IGST on imported goods. राजेश जी, इसके बारे में आप बता पाएंगे मेरे ख्याल से। I'm not aware of this. राजेश जी, राजेश जी आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन का? I don't have the notifications with me, but if you will see the proviso to section 54(3), that specifically deals with drawback in relation to unutilized input tax credits. So that unutilized input tax credit, qua the drawback taken on central tax, maybe service tax, maybe that they got subsumed, that is the central tax. Customs is not included in this. Customs would be apart from this. Even if you have taken the drawback of the customs, that would not be, because customs does not come within the ambit of central tax. Yes. Okay. It is not there. It is only central tax which has come, what is defined. So Thank you. And you will see. Next. Just a minute. I will just conclude one thing. Okay. There are two things. That drawback bar which has been put under the proviso to section 54(3) is only in relation to the input tax credit. You cannot take both. You cannot take the refund of the input tax credit as well as take the drawback on the central taxes. You would have to choose between the two. But so far as IGST is concerned, there is no such restriction. And Amit Cotton is the judgment, I think, which has been given by Gujarat High Court, where they have taken the view that if somebody is claiming IGST, which is directly against the shipping bill after paying the taxes, by any authority, that person can take the benefit of refund, and central taxes which drawback has been given to him, that can be adjusted. So if he has been given some drawback, you may give the balance as refund to him after adjusting the drawback. So that condition of drawback is only in relation to input tax credit, not with the IGST.
Thank you. Next question, Anuj. Next question is from Mr. Akhilesh Garg ji. His question is, refund formula is restricting my actual refund. Is this formula is valid as per GST provision and fair? Repeat करेंगे अनुज जी, एक मिनट क्वेश्चन को repeat करेंगे please. Basically, the formula which is provided under the refund for calculation of refund, that formula is restricting the actual refund amount. So is this formula is valid as per GST provisions? No, is it in relation to inverted duty rule or for export? Unmute Mr. Akhilesh Garg ji. Akhilesh ji, you have been unmuted, please. Akhilesh ji, please. अखिलेश जी, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए पूछ रहे हैं आप? एक्सपोर्ट के केस में सर, एक्सपोर्ट के केस में। संदीप जी एक्सपोर्ट के लिए पूछ रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी के लिए। एक मिनट अखिलेश जी, जरा क्लियर करेंगे फिर से क्वेश्चन एक बार अपना। फॉर्मूला जो 89 में, हेलो जी जी सर, एक्सपोर्ट के केस में सपोज आई मेड परचेजेस एंड द होल अमाउंट आई मेड द एक्सपोर्ट, सपोज माई रिफंड अमाउंट इज 10,000 और उसके साथ साथ यदि मैंने कोई लोकल सेल भी की है तो इन दैट केस मेरा एक्चुअल रिफंड इन रेस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट वो कर्टेल हो जाता है बाय दैट फॉर्मूला। इट इज माय अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है, यही हमने डिस्कस भी करा था। अगर 54 question is whether that restriction is valid in law. Can the government ask to restrict that ITC because अगर हम I have flexible supply as well as export. बिल्कुल ठीक है, वो सर आपका रिफंड जो है 54(3) के मुताबिक अगर देखा जाए तो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि फॉर्मूला प्रोवाइड करा जाएगा। अगर उसके 54(3) को स्ट्रिक्टली रीड करा जाए तो रूल 89 में फॉर्मूला प्रोवाइड करा गया, दैट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद 54(3), तो रिफंड जो आपका है एक्सपोर्ट का वो पूरा मिलना चाहिए। फॉर्मूला जो बना है इसके तहत वो गलत बना हुआ है। Right. Next. Can I ask two questions which I am facing presently with the department in regard to refund? Actually, there was a circular dated 31st March 2020 in which what they said that for the purchase details which we submit along with the refund application, we need to give HSN details also, HSN or SSC details also. But when I filed the returns for the earlier period, that is for suppose 1920, that is before the date of the circular, they are issuing me notice for that period also to give the details. At that time, there was no provision to capture such kind of details in the system. So how I can now take out all these such kind of details and report to the department? You can always reply to them. I think that's a notice which is not in accordance with law. You can always reply. Go into litigation because there is no option at the department level. You have to get into litigation on this aspect, of course. And the second thing, what they did in the same circular, sir, earlier what they said that in case the invoice is not available in two-way, so what we could have done is we could have provided the copy of the invoice to them, that the invoice is not reflecting there in two-way. But white circular, they said that now the credit is only limited to the invoices which are available there in two-way. So they can make such kind of. अनुजी ये बात हमने शुरू में भी करी थी कि इन लोगों ने इतने वाहियात किस्म के सर्कुलर इशू कर रखे हैं, जैसे हमने 54(3) का वो डिस्कस भी करा था। सर्कुलर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद दैट। सर्कुलर्स जो उनके मन में आता है, ऑफिसर के मन में आता है, वो इशू करी जा रहे हैं, जहां पर उनको लगता है कि सरकार का law and how they can do such kinds of changes white circulars. So you have, see, ultimately why the courts are now flooded with the litigation in relation to GST. That is because of this, that you have to challenge this circular. They will reject your refund on this. You will go to court challenging that circular, and court will take its own sweet time to decide this. संदीप जी, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये बताइए कि इसमें लॉ में लिखा हुआ था कि द ऑफिसर विल डिटरमिन द रिफंड एंड ट्रांसफर टू फंड। तो कौन सा ऐसा रिफंड है जो वो डिटरमिन कर देता है और वो वहां ट्रांसफर कर देता है, एसएससी को नहीं देता? कौन सा ऐसा है, जरा एक एग्जांपल दे। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। that is just another point of having good and simple tax. Sir, one hand has been raised by Shriya Thakkar, Ms. Shriya Thakkar, so I am unmuting her to ask question. Hello. Yes. Hello. Mr. Shriya. Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Can you speak loudly?
आपका अनम्यूट हो गया। अब हेलो जी बोलिए ठक्कर साहब। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं 5% में माल परचेज करता हूँ और उसको IGST से एक्सपोर्ट करता हूँ जी। तो क्या मेरे को 2 प्रकार का रिफंड मिलेंगे, जो एक्सपोर्टर का भी रिफंड मिलेगा और जो मेरी अनयूटिलाइज क्रेडिट है उसका भी रिफंड मिलेगा? दोनों को नहीं अलग मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। जो अगर आप IGST पेड पे टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप IGST पेड का ही रिफंड ले सकते हैं। आपको फिर उसके बाद उसको जो अनयूटिलाइज ITC है उसका रिफंड नहीं मिलेगा आपको। सेम फॉर्मूला सेल्स में भी होगा, सेल्स में भी सेम फॉर्मूला ही होगा। सेल्स में सप्लाई करते हैं हम तो उसमें भी सेम फॉर्मूला होगा। सेल्स में माल बेचते हैं, SEZ में माल बेचते हैं हम। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सर आप। ये सेम फॉर्मूला SEZ में भी होगा, SEZ में माल बेचते हैं हम। जी जी जी, उसमें भी ऐसी उसी तरीके से होगा सर। अगर आप IGST पेड का रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको ITC जो अनयूटिलाइज्ड है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका रेट ऑफ टैक्स जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर कम पड़ रहा है और आपका उसके बाद अनयूटिलाइज्ड ITC रहता है, आई विल एडवाइज दैट यू शुड फाइल एन एप्लीकेशन अंडर RFD 01 बाय अंडर LUT। बट IGST पेड का अगर आप रिफंड लोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना रेट ऑफ टैक्स उसके ऊपर है। Sir, I also welcome the presence of Mr. Ashok Sharma, President of Sales Tax Bar Association Delhi. I have just seen him. Thank you so much. Yes. Thank you. Sir, next question is from Miss Avni Trivedi. Her question is, sir, for export refund for March, basically she is talking about the refund with payment of tax, where the payment of tax has been made. Invoice is yet not processed, refund is not received. GST department, they are saying that it is a problem with IceGate, so they can can you guide what I can do in this case? सर हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा सर, इसके लिए और कोई चारा नहीं है। ये सब प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं आइसगेट से रिलेटेड है या प्रोसीजर से रिलेटेड या पोर्टल से रिलेटेड, you have to crystallize your problem, you have to take the screenshots, you have to communicate with the department, accumulate all the documents and approach High Court by way of a writ petition. तो जो आइस गेट की प्रॉब्लम है अनुज जी, जो आइस गेट वाली प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल से आप इनको ये कहिए कि अपने जो वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होता है जो वहाँ पे काम करवाता है उससे जाके उनसे ये पूछे कि भाई ये रिफंड क्यों नहीं प्रोसेस हुआ। लगता है उनको इन्होंने रिस्की एक्सपोर्टर्स के केस में डाल दिया हो। नहीं सर, ये अभी ये सिचुएशन मेरे साथ आई थी। हाँ, इनको ये एडवाइस करिए कि वो फाइंड आउट करें वहां से कि वो रिस्की एक्सपोर्टर के केस में डाल दिया होगा और कोई ऑब्जेक्शन लगा रखा होगा वहां पर। उसके लिए उनको वहां जाना पड़ेगा, TKD या जो भी कोर्ट है वहां पे जाके उसको क्लियर करवाना पड़ेगा। देयर इज of that, let her first check from there, if it is there then she can get it cleared. हाँ सर, ये अभी से मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी और ये इसी तरीके से CHS के थ्रू वहां से कोशिश करके सर वो हो गया था। Very good. तो you can advise her like that. Next. Sir, the next question is from Miss Sunita Singh. Her question is, will drawback at higher rate be available to the handicraft exporters who do not avail ITC? Will drawback at higher rate be available to handicrafts exporter who do not avail ITC? Well, I am not aware of handicraft. I need to read the Rajesh से पूछते हैं। Drawback, as I said earlier, that these are the two options. Either you claim the drawback or you claim the refund. ITC, when you speak, then you are seeking refund of ITC. But if drawback is higher, then you better go for the drawback because that is higher than the ITC which is available to you. But both things cannot go together. Only one will be have to be applied. How many question left, Anuj ji? The last question है अखिलेश जी का। हाँ जी। The question है, time limit refund is 2 years only. Is this not violation of my vested right? No. You can't claim this to be a vested right because it's a procedural law and every procedure has some finality. हम लोग कहते हैं assessment के लिए भी हम लोग कहते हैं 3 साल 5 साल का limitation का period है. It is not about the fact that whether you have a vested right or not. Government has given you a chance to apply it within a particular limit. There could be a dispute. How do you calculate it? There could be a dispute that you were not able to do that within that period of 2 years. But you cannot claim it as a matter of vested right. There cannot be unlimited period prescribed for anything. In fact, the courts. So friends, संदीप गोविंद ने
बहुत ही एक्सेलेंट डेलिब्रेशन किया, इतने अच्छे ढंग से इतने सिंपल वर्ड्स में पूरा लॉ समझा दिया हमको, और इवन क्रिटिकल इश्यूज को भी उन्होंने हाईलाइट किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेश जैन जी से, तो इसको विद फॉर हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। It's a great pleasure to be a part of this webinar. Sandeep Goyal ji, as we all know, is an eminent speaker, a well-read person about the law, and he has been practicing so highly in High Courts as well as in Supreme Court. It's a wonderful deliberation by him on a very contentious issue of refund. There are so many issues in relation to refund which he has dealt with, threadbare. I think whatever, many of the problems which we would have been facing, they would get solved by his deliberation. But if still some remains, we can seek his assistance, whether in Punjab and Haryana High Court or through mail, because he's always available. He's available 24/7. Thank you so much, Sandeep. And in Delhi, Rajesh Jain is available 24 hours. Now, Kaushal sir, your summary, sir. Kaushal sir. Kaushal sir has left. Kaushal sir is not there, sir. Kaushal sir is left. Okay. तो मदान साहब, नानकानी साहब के नानकानी से भी कमेंट्स ले लीजिए। आप रिक्वेस्ट करिए ना, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। अरे सर, आप यू आर कंडक्टिंग द प्रोग्राम। सर, रेस्पेक्टेड नानकानी सर, नानकानी साहब से उनसे भी क्लोजिंग कमेंट्स तो उनसे भी ले लीजिए। ऑनरेबल नानकानी सर, अनुज उनको अनम्यूट कर दो। सर अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाली हुई है सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। नानकानी सर अनम्यूट करिए। नानकानी सर आपको ही करेगा। ओके यस सर। आई एम योर फ्रेंड, डोंट कॉल मी एज ऑनरेबल। Sir, friends are always honorable. I love to be with such kind of seminars and webinars organized by any zone, and I really prefer to be among with you. So nice of you. God bless you and have a nice time. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Srivastava ji, vote of thanks करवा दीजिए। I think now it's today's vote of thanks would be presented by Mr. Basant Kumar. Basant ji, now over to you. Yes, sir. It is my privilege to present vote of thanks to this wonderful webinar. Today's subject, GST refund, is a complex subject, but it has been taught by the learned speakers, Sandeep Goyal, in a very simplified manner. We all of us enlightened with his wonderful presentation. We sincerely thanks to him on behalf of all the participants, AIFTP station. I also thank Nankani sir for his coordination and chairing this session. I also thank Mr. Rajesh Jain and Mr. B.R. Kausal for giving his valuable input. I also thank on behalf of all the members of the AIFTP team, including Madan sir, Srivastava sir, Tasim Jafar sir, Puneet Singh and Anuj Bansal for moderating this session and conducting this session for the knowledge of all the members. And last, I thanks all the participants who are with us in this session and participated from the starting to end, even who has left also. Thank to all. सभी सीनियर्स का, यंग प्रोफेशनल्स का और स्टाफ का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. I request all of you to join tomorrow at 11 o'clock. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm closing session now, sir. Nice program. Thank you. Nice program.